زریاب خان اپنے ڈیرے پر بیٹھے چائے کی چسکیاں لینے میں مصروف تھے جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ زریاب خان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بکھر گیا۔ السلام علیکم زریاب خان، کیا لینے آئے ہو یہاں؟ زریاب خان نے اس کے سلام کو نظر انداز کر کے تڑک کر پوچھا۔ لینے تو میں کچھ نہیں آیا زریاب خان، بس خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ وحید ملک نے زریاب خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے زریاب خان نے سختی سے جھٹک دیا۔ بیٹھنے کا تو بول دے زریاب خان، یا کھڑے کھڑے ساری باتیں کرنی ہیں؟ زریاب خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی وہ دوبارہ بولا، کمال ہے بھائی، اب تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ خود ہی جا کر سامنے پڑے صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ سچ میں بڑا دکھ ہوا زریاب خان، میں نے سنا ہے تمہاری بھتیجی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ بہتر تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، کم از کم تمہارے منہ پر اتنی کالک تو نہ ملتی۔ وحید ملک نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے کہا، بکواس بند کر اپنی۔ زریاب خان نے گھراتے ہوئے کہا، چھان بین کروائی تم نے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے اس نے؟ اور وہ تو تیری بہو بھی بننے والی تھی نا زریاب خان، تیرے صاحبزادے عادل خان کی بیوی۔ وحید ملک نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا، تجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کہا؟ بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جا یہاں سے۔ مگر وحید ملک تو جانے کی بجائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اور بھی زیادہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ تم نے پولیس کو انوالو کیوں نہیں کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اخبارات میں اشتہار دیتے کہ زریاب خان کی بھتیجی یونیورسٹی سے اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، جس کو خبر ملے وہ اسے زریاب خان کے حوالے کر دے۔ اور ساتھ ہی وحید ملک کا زوردار قہقہہ گونجا، کمینے ذلیل انسان، نکل یہاں سے۔ زریاب خان نے اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ زریاب خان کی پکڑ اس کی گردن پر سخت ہو چکی تھی، مگر سامنے والے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے گھر کے مردوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ وحید ملک کا اشارہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھا جو اس کے گریبان پر تھے۔ اپنی زبان کو لگام دے ملک۔ زریاب خان شیر کی مانند بفرا تھا۔ میں تو جا رہا ہوں زریاب خان، دیکھتا ہوں کس کس کی زبان پر لگامیں ڈالتا ہے تو۔ وحید ملک نخوت سے سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ وحید ملک بھی پاس والے گاؤں کے چودھریوں میں سے ایک تھا، اور اس کی زریاب خان سے شروع سے نہیں بنتی تھی۔ وہ زریاب خان کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اب بھی وہ عائشہ کے غائب ہونے کی خبر سن کر ہی زریاب خان کے ڈیرے پر آیا تھا۔ ابھی زریاب خان واپس مخصوص نشست پر اپنی بیٹھا ہی تھا کہ ایک ملازم بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ خان صاحب آپ کے لیے فون ہے۔ ملازم نے فون زریاب خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور کان پر لگاتے ہی دوسری طرف سے جو بات زریاب خان نے سنی تھی، اسے سنتے ہی اسے آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا، جبکہ چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ اب کوئی پگھلا ہوا سیسا تھا جو عادل خان کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ زریاب خان کے الفاظ سنتے ہی عادل خان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب نفوس پر سختہ طاری ہو گیا۔ عادل خان کو تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عادل خان نے گمسم لہجے میں کہا۔ ایسا ہو چکا ہے عادل خان، اور بہتر ہوگا کہ جلد سے جلد تم اپنے ذہن سے اس منحوس لڑکی کو نکال دو۔ زریاب خان نے عادل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے بے ساختہ عادل نے ہٹاتے ہوئے کہا تھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ابا جان، عائشہ گل صرف اور صرف میری ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، ہرگز نہیں۔ عادل خان نے چلاتے ہوئے کہا۔ عادل خان جو 2 سال سے پڑھائی کی غرض سے دیار غیر میں مقیم تھا، اسے عائشہ گل سے محبت تھی۔ عائشہ گل سے چونکہ اس کی نسبت بھی طے تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج جب وہ 2 سال بعد لوٹا تو عائشہ کی گمشدگی سے لے کر نکاح تک کی خبریں سن کر اسے لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ بھلا اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا عائشہ سے؟ وہ اس کی بچپن کی منگ اور پہلی محبت تھی۔ جہاں عادل خان کا یہ حال تھا، وہیں دوسری طرف وہاں موجود سب نفوس بھی عائشہ کے نکاح کی خبر سن کر ساکت کھڑے تھے۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے زریاب خان کو دیکھ رہے تھے۔ زریاب خان، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا؟ یہ کیا کچھ بولے چلے جا رہے ہو؟ عائشہ کا نکاح ہو گیا اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے، کسی نے بتایا تک نہیں ہمیں۔ اب بولنے والی اماں بیگم تھی۔ زریاب خان کی بات سن کر انہیں حیرانی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں زریاب خان کے اس فیصلے پر غصہ نہیں آیا تھا۔ میں دوبارہ اس منحوس لڑکی کا ذکر اس گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا،
और अगर मैं ये बात आपको बता भी देता तो क्या कर सकते थे आप लोग अम्मा बेगम? जरियाब खान के चेहरे पर उस वक्त घमंड ही घमंड था और आयशा के लिए लहजे में नफरत ही नफरत। मनहूस मत कहिए अब्बा जान, वो घर से भागी नहीं थी, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। और कुछ भी करने से पहले इतना तो सोच लेते कि वो आप ही के बेटे की होने वाली बीवी थी। आदिल खान ने जरियाब खान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। अगर सामने जरियाब खान थे तो दूसरी तरफ भी उन्हीं का खून खड़ा था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? चिल्लाने वाले अब जरियाब खान थे। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि सारी उम्र जिस औलाद पर हुक्म चलाया वो अब इस तरह मुकाबले में खड़ी हो जाए, वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो बेतहाशा नफरत करते थे। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ अब्बा जान, गलत तो आप करके आए हैं आयशा गुल के साथ। आदिल खान ने डट कर बाप का मुकाबला किया था। समझा लें इसे नसरीन बेगम, वरना। जरियाब खान कहर आलूद निगाहों से आदिल को देखकर नसरीन बेगम से मुखातिब हुए। क्या करेंगे आप अब्बा जान? मेरी भी जान ले लेंगे? और आप कर भी क्या सकते हैं? आदिल खान ने तासुफ से उन्हें देखा था। उस बदकिरदार लड़की के लिए तुम में इतनी जुर्रत आ गई कि तुम अपने बाप से टक्कर लो। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि वो लड़की अब कभी इस घर में वापस आ सकती है। जरियाब खान ने गरजदार लहजे में कहा। जिस बात का उन्हें डर था आज वही हुआ था। आदिल खान के आयशा के लिए मुखलिस जज्बात से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। जो आप लेकिन आयशा गुल को मैं इस घर में वापस जरूर लाऊंगा। आप तो उसे अपनी गैरत की भेंट चढ़ा चुके हैं ना। बेखौफो खतर आदिल खान भी उनके सामने खड़ा उन्हीं के लहजे में बोल रहा था। बदतमीज, अपनी जुबान को लगाम दो, मत भूलो को तुम इस वक्त अपने बाप से मुखातिब हो। जरियाब खान तैश के आलम में दांत कचकचाते हुए बोले, लेकिन आदिल खान पर कोई असर न हुआ। वो भी उन्हीं के अंदाज में गर्दन अकड़ाए उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। ये सब तुम्हारा खुद का ही किया धरा है जरियाब खान। तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले आदिल खान को आगाह करना चाहिए था। अब वो दौर नहीं रहा कि तुम अपना फैसला अपनी औलाद पर थोप दो और वो खुशी खुशी कबूल कर ले। तुम्हें क्या लगता था आदिल खान चुप रहेगा? बिना कोई एहतजाज किए चुपचाप तुम्हारा फैसला कबूल कर लेगा? ये तुम्हारी भूल थी जरियाब खान। अम्मा बेगम की बात पर उन्होंने चौंक कर उनकी तरफ देखा था। फैसला तो इसे मेरा मानना ही पड़ेगा। और क्या कर लेगा ये? अब तो आयशा गुल का निकाह भी हो चुका, कैसे लाएगा ये उस लड़की को? जरियाब खान ने आदिल खान की तरफ देखकर नखुवत से कहा। मैं आयशा गुल को उससे आज़ाद कराऊंगा। मैं जानता हूँ आयशा गुल के दिल में मैं ही मैं हूँ बस। आदिल खान ने पुरजोश होते हुए कहा। क्या करोगे तुम आदिल खान? अब अगर तुमने उस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो हैशम खान तुम्हारी आंखें निकाल देगा। तुम्हारा वो हशर करेगा कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। जरियाब खान ने आदिल खान को हैशम के बारे में आगाह करते हुए कहा, क्योंकि वो जानते थे कि हैशम खान एक ताकतवर इंसान है। दूर दूर तक लोग उसे जानते हैं। उनके नज़दीक हैशम खान को छेड़ना मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ था और इस तरह उनकी अपनी साख भी मुतासिर हो सकती थी काफ़ी। लेकिन आदिल खान तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही ना था। आदिल खान किसी से नहीं डरता। आदिल ने दांत भींचते हुए कहा, तो ठीक है जाओ आदिल खान, और हमसे कोई उम्मीद मत रखना, मगर एक बात याद रखना, जिस दिन तुम उस लड़की को इस घर में लाए वो दिन उस लड़की का दुनिया में आखिरी होगा। जरियाब खान गरजदार आवाज में बोले, और आपको आता ही क्या है लोगों को मारने के सिवा? मुझे तो अफसोस होता है कि मैं आपकी औलाद हूँ। इससे अच्छा तो मैं किसी फकीर के यहाँ पैदा हुआ था। आदिल खान ने मजबूत लहजे में कहा। उसकी बात पर जरियाब खान तैश में आगे बढ़े और एक सन्नाटेदार थप्पड़ आदिल खान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। अगर आपको लगता है कि इस तरह आप मुझे रोक सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं आयशा गुल को एक ना एक दिन इस घर में ज़रूर लाऊंगा। आदिल खान गाल पर हाथ रखे पुरज़्म लहजे में कहता, लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। ये सब आपकी ढील का नतीजा है नसरीन बेगम। ये कैसी तरबियत की है आपने इसकी? और अगर अब भी आप इसकी भलाई चाहती हैं ना, समझा लें इसको। अगर इसकी वजह से मेरी पोजीशन को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरियाब खान नसरीन बेगम को सख्त लहजे में कहते अपने रूम की तरफ बढ़ गए, जबकि नसरीन बेगम तो उस वक्त मूर्ति की मानित साकित खड़ी थी। उन्हें कहाँ अंदाजा था कि एक दिन बाप बेटा यूं आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ मदे मुकाबिला खड़े होंगे। वो तीनों अपनी बातों में मगन हैशम खान के कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन हैशम को कमरे से बाहर आता देख वहीं रुक गए। हैशम खान जो अपनी ही सोचों में कमरे से निकल रहा था, उन तीनों को वहां खड़े देख वहीं रुक गया। सवालिया नजरें उनकी जानिब उठाई उसने। कुछ नहीं भाई, वो बस हम भाभी से मिलने आए थे। उठ गई क्या वो?
हैशम की नज़रों का मफहूम समझकर हाजिम ने जल्दी से सफाई पेश की। हाँ, आयशा गुल उठ चुकी हैं, फ़िलहाल तैयार हो रही हैं वो। तुम दोनों चलो मेरे साथ, और रूही तुम भाभी को अपने साथ नीचे ले आना अपनी। उन दोनों को अपने साथ चलने का कहकर वो रूही को ऑर्डर देता आगे बढ़ गया और चारों नाचार उन दोनों को हैशम के साथ ही जाना पड़ा। रूही कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम भाभी। आयशा को वॉशरूम से निकलते देख रूही ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आयशा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। कैसी हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आयशा ने मुख्तसर जवाब दिया। सच में भाभी आप बहुत प्यारी हैं। पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप हमारी भाभी बन गई। रूही ने बेसाख्ता उसके गले लगते कहा। ओह सॉरी, शायद ज़्यादा हो गया। चलें अब आप तैयार हो जाएं, सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं, या फिर बैठे मैं आपको तैयार करती हूँ। अगर आज आपने हैशम भाई के होश न उड़ा दिए तो फिर कहिएगा। रूही ने उंगली दांतों में दबाते हुए कहा, लेकिन जल्द ही अपनी खफगी पर काबू पाते उसने आयशा को कंधों से पकड़ते हुए आईने के सामने मौजूद चेयर पर बिठाया। उसके हाथ बड़ी महारत से आयशा के चेहरे पर अपना काम कर रहे थे और कुछ ही देर में रूही जोर से चिल्लाई, ओई भाभी। आयशा उसके इस तरह चिल्लाने पर एकदम चौंकी। क्या हो गया रूही? क्या मैं इतनी भयानक लग रही हूँ? अरे नहीं भाभी, आप बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं तो खुशी से चिल्लाई थी। रूही ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहा। ओह थैंक यू, ये तो बस तुम्हारे हाथों का कमाल है। बेशक वह हुस्न की दौलत से माला माल थी, लेकिन वहाब ने उसके चेहरे पर लाइट मेकअप किया था जो उसके हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा रहा था। खैर अब ऐसी भी बात नहीं, चलें अब नीचे चलते हैं, सब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात बोलूं भाभी? रोहाब ने सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर जमाते पूछा। हाँ बोलो। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है रोहाब, तुम बिला झिझक मुझसे बात कर सकती हो। आयशा को उसका यूं इजाज़त लेना थोड़ा अजीब लगा। जी भाभी ज़रूर, वो मैं कह रही थी कि हैशम भाई तो आज गए काम से, रूही ने उसे छेड़ते हुए कहा। तभी उसकी आयशा गुल का चेहरा शर्म से सुर्ख अनार जैसा हुआ। आयशा को वो छोटी सी नाजुक सी रूही बहुत अच्छी लगी, हर वक्त हंसने वाली, छोटी छोटी बातों पर खफा हो जाने वाली। बेशक वो एक नाजुक और हसीन दिल की मालिक थी। हाय भाभी, आप ब्लश कर रही हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। रोहाब ने उसका सुर्ख होता चेहरा देखकर शरारती अंदाज में कहा। बस कर दो क्यूट गर्ल, बड़ी ही शरारती हो तुम। आयशा ने उसके गाल को नरमी से खींचते हुए कहा और फिर वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गईं, जहां मेल जनरेशन उन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कहाँ रह गई है ये रूही की बच्ची, कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम। ज़रूर बातों में लग गई होगी। कितना बेचैन हूँ मैं भाभी से मिलने के लिए। अभी लेकर आता हूँ उस रूही चुड़ैल को। तो हाजिम कब से आयशा से मिलने के लिए बेचैन बैठा था, और अब तो जैसे उसकी बस हो चुकी थी। तभी बुड़बुड़ाता खड़ा हुआ कि नज़र सामने से आती रुहाब और उसके पहलू में चलती हुई आयशा पर पड़ी, और तभी हाजिम आगे बढ़ा। वेलकम टू आवर डाइनिंग रूम मिसेज़ हैशम खान। हाजिम ने एक हाथ सीने पर रखे सर को थोड़ा खम देते दूसरा हाथ माथे के पास ले जाकर आयशा को वेलकम किया था। आयशा उसे इस तरह देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई, पर बोली कुछ नहीं। खामोशी हनूज कायम थी। और तभी हैशम खान, जो शहजादों की आन बान लिए सरबराही कुर्सी पर बैठा था, उसने नज़र उठाकर आयशा की जानिब देखा, और जैसे उसकी नज़रें उसके हसीन सरापे में उलझ कर रह गई। नज़रें थी कि पलटने से इनकारी थी। रॉयल ब्लू कलर की पाँव तक आती मैक्सी, कानों में खूबसूरत झुमके और लाइट मेकअप, वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। हैशम समझ नहीं पा रहा था कि वो कल रात ज़्यादा हसीन लग रही थी या अब। आयशा हैशम खान के मुसलसल इस तरह देखने से पजल हो रही थी। उसकी जज्बात लुटाती नज़रें आयशा को कंफ्यूज कर रही थी। माना कि भाभी बहुत प्यारी लग रही हैं भाई, लेकिन क्या अब नज़र लगाने का इरादा है? ज़ायान ने गला खंकारते हुए हैशम खान के इस तरह देखने पर चोट की। हैशम खान ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला और अपनी बेखुदी पर जी भर के शर्मिंदा भी हुआ। रूही ने आयशा को हैशम के दाएं जानिब मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा दिया और ख़ुद भी उसके बराबर मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। उस वक्त टेबल दुनिया जहान के लवाजमात से सजा हुआ था। ऐसी कौन सी शय थी जो टेबल पर मौजूद ना थी? आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या ले। वो गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ़ थी जब हैशम खान ने उसे पुकारा। आयशा गुल, क्या हुआ? आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? कोई मसला है क्या? अगर आपको कुछ और खाना है तो आप बता दें, हम जैनी से कहकर कुछ और बनवा देते हैं। हैशम खान ने लहजे में नरमी लाते हुए कहा।
नहीं कुछ नहीं, मैं खा रही हूँ बस। आयशा को अपने रवैये पर खफगी महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाकर जल्दी से ब्रेड का स्लाइस उठाया और धीरे धीरे खाने लगी। एक बात पूछूं भाभी? अब की बारी जायान मुखातिब हुआ। आयशा ने इस बात में सर हिलाया। आप बोलती भी हैं? जायान के इस सवाल पर आयशा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। नहीं, मेरा मतलब था कि जब से आप आई हैं हाँ या ना के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैंने इसलिए पूछा था बस। जायान ने जल्दी से सफाई दी। अरे जायान, तू भी ना एक नंबर का गधा है। पागल, भाभी अभी शर्मा रही हैं। इतना तो समझा कर, नई नई शादी हुई है उनकी। हाजिम ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। हैशम जो बज़ाहिर ला ताल्लुक बैठा था, जबकि ध्यान पूरा उन्हीं की तरफ था, उसकी इस हरकत पर उसे घूरी से नवाजा, जबकि रूही ने उसकी बात पर हूटिंग की थी। ओह! और फिर इसी हंसी मजाक में हैशम खान की घूरियों में नाश्ता किया गया और कुछ ही देर में तीनों आयशा के कमरे में उसे घेरे बैठे थे। आयशा और हैशम की शादी को अब एक हफ्ता गुजर चुका था। आयशा को तो मालूम ही नहीं हुआ कि ये हफ्ता कैसे गुजरा। अब वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। आयशा को यहाँ हाथों हाथ लिया गया था। सब ने उसे पलकों पर बिठा रखा था। सब उस पर दिलो जान से फिदा थे। हाजिम की बेतुकी बातों पर वो हर वक्त हंसती रहती, जबकि जायान भी उसका खूब साथ देता। और रूही के साथ तो उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके साथ तो वक्त का पता ही ना चलता था। और रही बात हैशम की, तो हैशम एक बहुत ही केयरिंग हस्बैंड साबित हुआ था। वो हर तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता। उन सब की मोहब्बतों पर वो रब की बहुत मशकूर थी। और अब बस, अब सब अपनी अपनी साबका रूटीन में मसरूफ़ हो चुके थे। हैशम खान सुबह का गया रात को लौटता था। आयशा में आने वाली तब्दीली को वो वाज़े तौर पर महसूस कर चुका था। आज हैशम खान जैसे ही वापस लौटा तो आयशा गुल को बेचैनी से टहलते पाया। अस्सलामुअलैकुम। हैशम खान ने मामूल की तरह सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उसके इस सवाल पर हैशम खान ने हैरानगी से उसको देखा। हम ठीक हैं आयशा। हैशम खान की हैरानगी अब भी हनूस कायम थी। पिछले दिनों की निस्बत आज वो उसे काफ़ी बेहतर लगी थी। वो हैरान था कि इतने दिनों में आज पहली मर्तबा आयशा ने खुद उसे मुखातिब किया था। वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। काफ़ी पल खामोशी से गुजरने के बाद वो गोया हुई। जी बोलें, हम सुन रहे हैं। हैशम खान पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। वो मैं उसने एक लम्हे के लिए फिर से सोचा, कहीं हैशम को गुस्सा ही ना आ जाए और शायद वो उसकी बात कभी ना माने। बोली आयशा गुल, क्या कहना चाहती हैं आप? वो मैं उससे बोला तक नहीं जा रहा था। वो बेचैनी से बार बार हाथ मसल रही थी कि हैशम सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसे शानों से थाम कर वापस लाकर अपने साथ बिठाया। सोफे की बैक पर हाथ रखे, टांग पर टांग चढ़ाए, वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो था। उसने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। वो उसके पास बैठने पर ही घबरा रही थी। अब तो बाकायदा पेशानी पर पसीने की बूंदें वाज़ेह नज़र आ रही थी। हमारे दरमियान इतना गहरा और मजबूत रिश्ता है आयशा कि आपको हमसे कोई भी बात करने में झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं आप अभी इस रिश्ते को पूरी तरह कबूल नहीं कर पाई। आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकती हैं। मानता हूँ जिन हालात में हमारा निकाह हुआ उसमें एकदम ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है आयशा। और अगर आप हमसे अपनी बात नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? वो सर झुकाए लब काटते खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। जब हैशम ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डालकर उसे तसल्ली दी और अपने साथ का यकीन दिलाया। अब बताएं, ऐसी क्या बात है जो आप बताने में इतना झिझक रही हैं? मुझे अम्मा बेगम की बहुत याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आयशा का सर अब भी झुका हुआ था। जब काफ़ी देर तक हैशम खान कुछ ना बोला तो आयशा ने नज़रें उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ बेजारी वाज़ेह थी। कुछ देर बाद काफ़ी सोचने के बाद हैशम गोया हुआ। हम समझ सकते हैं आयशा, लेकिन इस तरह ज़रियाब खान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कॉल पर बात कर सकती हैं, लैंडलाइन पर। कर लूं क्या? वाकई? आयशा ने हैरानगी से पूछा। जी कर लें। नंबर याद है आपको? जी। हैशम खान ने लैंडलाइन पर नंबर मिलाकर फ़ोन आयशा की जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर आयशा ने कान पर लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से उभरने वाली आवाज़ ने उसे कुछ भी कहने से बाज रखा। उसने एक लम्हे से भी पहले लाइन डिस्कनेक्ट की। क्या हुआ? हैशम खान उसे मुसलसल खामोश देखकर सवाल कर गया। वो चचा। आयशा गुल को लगा कि उसके गले में कोई नमकीन गोला फंस चुका है, जिस वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा। उसने परेशानी से हैशम की तरफ देखा, जो सारी सूरत हाल समझ चुका था। कोई बात नहीं, सुबह ट्राई कर लेना, हैशम ने उसे तसल्ली देते कहा। उसने इस बात में सर हिलाया और उठती रूही के कमरे की तरफ बढ़ गई।
اسے کچھ اسٹڈی کے حوالے سے مدد چاہیے تھی، جبکہ ہیشم خان کے دماغ میں بہت سی سوچیں گردش کرنے لگیں۔ آج اس کی بیوی نے نئی فرمائش کی تھی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پورا کرنا تھا۔ عائشہ گل تو اب اس کی زندگی بن چکی تھی، تو وہ کیسے اسے خفا دیکھ سکتا تھا؟